তাহলে তো আমরা কোনো মাত্রা করে মানুষ বাচ্চা দিতাম, কারণ এরা ভাড়া টাড়া যা অনেক খরচ আছে, তার বেতন, টাকা ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, অনেক খরচ হলে মানে যাবে। যদি ভাড়া তাহলে আমরা একটু এখন পর্যন্ত আপনার কীরকম হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য? না খুবই খারাপ। ডেলি আমার 15,000 টাকা এখানে খরচ, এর মাঝে আমদানি করি না 10,000 টাকা। আমদানি 10,000 টাকা করলে কিছু আমার খরচে আছে 15,000 টাকা। কয় টাকার ব্যবসা হয়? 1,000 টাকা ডেলি ব্যবসা করতে হয়, বিরাট লসা আছে মনে বেচা কিনে হইতেছে? ব্যবসায়ীটি খুব খারাপ, ব্যবসায়ী খুবই খারাপ। আর যে বৃষ্টি আমরা তো বিরাট লস, অন্তত নাহলে 4 লাখ টাকা লস খাবো। অত বৃষ্টি হলে কি আগে ঘুরতে গাছ থেকে না মেলা হয়েছে। আচ্ছা, তো আরও আছে 4 দিন, কী আশা করতেছেন আপনি? ওই বৃষ্টি যে আকাশের নমুনা তো মনে হয় না যে আমরা মেলা ভালো ভালো হইতে ভালো ভালো মজা আমার কোনো আসেই নেই। আকাশের নমুনা খুবই খারাপ। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। খোয়াই দুর্গানগর এলাকায় অতিরিক্ত বাতাসে বৈদ্যুতিক খুঁটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি বারবার বিদ্যুৎ নিগমের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোনো ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বৈদ্যুতিক খুঁটির বেহাল দশা, যে কোনো সময় খুঁটি ভাঙে ঘটে যেতে পারে বড় কোনো দুর্ঘটনা। জানা যায়, খোয়াই দুর্গানগর এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটি বিপজ্জনকভাবে ভেঙে পড়ে রয়েছে। পাড়া প্রতিবেশীরা ভাঙা খুঁটিতে মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে তাদের অভিযোগ। যে কোনো সময় খুঁটিটি ভেঙে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তাতে আতঙ্কিত মানুষ। পাড়া প্রতিবেশীরা দাবি তুলেছেন অতি দ্রুত খুঁটিটি সারাই করার জন্য, অন্যথায় যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের অঘটন ঘটে গেলে বিদ্যুৎ নিগমকে এই জন্য দায়ী থাকতে হবে, এই বলে এলাকাবাসীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে বৃষ্টি একটা আসলো, আর প্রথম একটা বাতাস হয়েছে, বাতাস হওয়ার পর এরপরে দিয়ে হয়েছে গাছটা হেলে গেছে। আমরা সবাই দৌড়াদৌড়ি করে সবকিছু অফ করছি, কইরা সেটা এরপরে আইয়া দেখতেছি নিউজ গেছে, এর দ্বারা গেছে খবর, এরা এখন পর্যন্ত কেউই আইছে না। বিদ্যুৎ নিগম খবর দিতে, বিদ্যুৎ নিগম বিদ্যুৎ জানানি হয়েছে। কোন সময় জানানো হয়েছে? 2-3 ঘন্টা হয়েছে, কখনো আইছে না। না, তারা আইছে না কোনো প্রতিবাদে, কিন্তু আমরা বড় রিক্সা আছি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করেছি, কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাই আমি অনেক আগে থেকে চিনি, তাই আগে টাটা শোরুমে আসলো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাই যখন পড়েছে তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাইনের থেকেই কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট এন্ড ক্লিয়ার, একদম ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন।
গোটা রাজ্যের মধ্যে নেশা তার বারবারন্ত অব্যাহত রেখেছে। সরকার নেশামুক্ত রাজ্য গঠনের দাবি করছে। এর পাশাপাশি সমস্ত অংশের মানুষ যাতে নেশার বিরোধিতায় এগিয়ে আসে নিরন্তরভাবে সেই দাবিও রাখছে। আজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করল জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবিকারা। রাজধানী মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীরা তাদের দত্তক নেওয়া গ্রাম যোগেন্দ্রনগরের আম্বেদকরের পল্লীতে নেশা মুক্তি আহ্বান নিয়ে লিফলেট বিলি করা সহ পরিবেশের স্বার্থে বৃক্ষরোপণও করল। সমাজ দরদি কলেজ পাঠরতা এই ছাত্রীদের ভূমিকা এলাকায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। তারা দিয়ে আমাদের ওমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট আমরা আগেও করেছি, এখনো করছি। এই গ্রামে এসে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমরা সকলের হাতে রিফ্লেক্ট বিলি করছি। আর যেন সমাজটা যাতে সুস্থভাবে শান্তিতে সকলে বসবাস করতে পারে, মা বোনদের যেন কোনো কষ্ট না হয়, তার জন্য প্রতিটি ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সকলের কাছে রিফ্লেক্ট বিলি। এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের এই গ্রামটা আমরা দত্তক নিয়েছিলাম উইমেন্স কলেজ। তো আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রী যে ডাক দিয়েছেন নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের, সেই আহ্বানের সাড়া দিয়ে আমরা আজকে এই গ্রামের মধ্যে নেশামুক্ত ত্রিপুরার গঠনের লক্ষ্যে আমরা লিফলেট বিলি করছি। আমরা এর আগেও রাজধানীতে আমরা এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছি। আজকে আমরা এখানে এই লিফলেট বিলি করছি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজকে গ্রামের মধ্যে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটাও করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে গেল চোরের দল। ঘটনা খোয়াই থানাধীন মনোগনকি গাঁওসভার মহাদেব টিলা এলাকার খেয়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে। অভিযোগ, গতকাল রাতে ভারী বর্ষার সময় মহাদেব টিলা স্থিত খেয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হানা দেয় চোরের দল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘরের তালা ভেঙে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার এবং চুলার বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর খবর দেওয়া হয় পুলিশে। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। দেখার বিষয় পুলিশি তদন্তে কি বেরিয়ে আসে। আমারে ফোন করছে একজনে এরিয়ার থেকে, ওই আকাশ দাস করে আমার কইতাছে যে যদি আপনার স্কুল চুরি হয়েছে আপনি ওখানে একটু আয়েন। তাই আমি আয়া সেটা গেটে তালা লাগাই না, তারপরে এখানে দেখছি দরজাটা যাই না, তালার ভিতরে কড়াটা লাগে। তারপরে খুললাম, সবার সামনে লয়ে খুলছি, খুললে সেটা দেখি সিলিন্ডার নাই, গ্যাসের সিলিন্ডার নাই। তারপরে গ্যাসের বার্নারটি নাই, দুইটা বার্নার, একটা গ্যাস সিলিন্ডার নাই। গ্যাসের পাইপলাইনটা খোলা। হ্যাঁ, সেন্টারের নাম কি? খেয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। তারপরে এই আর কি চুরি হয়েছে? আর এমনিতে কিছু তো দেখতেছে না চুরি হয়েছে। আর এই ঘরটা পুরো আগে গ্রিলও খোলা, মেইন ঘরের দরজাটাও খোলা। এটা তালা লাগছে, তালা কিছু পাইছে না, এটা পুরোটা খোলা। আর এটা এমনি আজান না আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। গতকাল উল্টো রথে গিয়ে কুমারঘাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যারা বর্তমানে রাজধানী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে আজ হাসপাতালে গেলেন রাজ্যের শিল্প দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। হাসপাতালে অবস্থানকালে মন্ত্রী শান্তনা চাকমা আহতদের সাথে কথা বললেন, আহতদের পরিজনদের সমবেদনা জানালেন এবং চিকিৎসক সহ চিকিৎসা কর্মীদের সাথে চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় গতকালকের ঘটনাকে একেবারে দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করলেন শ্রীমতী শান্তনা চাকমা। মন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা গতকালকের ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং যারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। সর্বপ্রথম রাজ্যবাসীকে আমার প্রণাম এবং কালকের যে ঘটনা সেটা সম্পূর্ণ যেটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, সেটা হয়ে গেছে, দুর্ভাগ্যজনক। তার জন্য যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং যারা হসপিটালে ভর্তি রয়েছেন, চিকিৎসাধীন আছেন, তাদের প্রতি আমি আমাদের রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা চেষ্টা করছি অতি দ্রুত যাতে সুস্থ ওনারা হন এবং ট্রিটমেন্ট যাতে বেটার হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। এবং পাশাপাশি আমরা এবং তাদের পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে, এবং যাতে অতি দ্রুত সুস্থ হন সেই কামনা করছি। অ্যাকচুয়ালি যেটা বলা দুঃখজনক, যেটা আমরা ভাবতে পারি ত্রিপুরার জনগণ হিসেবে হোক অথবা একজন কি বলবো, যেটা দুর্ভাগ্যজনক, তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত
এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারকে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি এবং সমবেদনা জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি যারা হসপিটালে অ্যাডমিট যারা রয়েছেন তাদেরকেও আমি ভগবানের কাছে তাদের যাতে অতি দ্রুত যাতে সুস্থ হয় সেই কামনা করি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাদের আমি অনেক আগে দিয়েছিনি, তাই আগে টাটা শোরুমে আসলো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাদের করেছে, তাদের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাদের থেকেই কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যারা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ নিতে এবং তাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আজ হাসপাতালে ছুটে যান মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী। শ্রীমতী বর্ণালী গোস্বামী আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন, তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। পাশাপাশি মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় গতকাল যারা এই ঘটনায় হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্তক্রমে युवा साथी, आप लोगों ने मुझे जब ये निमंत्रण दिया था तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे आपके यहाँ तो आना ही है। और यहाँ आना अपनों के बीच आने जैसा है।
अब 100 साल की ये फिल्म हम देख रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए। सिर्फ ये दिग्गजों को देख लेते तो भी पता चल जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं विद्यार्थी काल से जानता हूं, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। और मुझे अनुमान था कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जरूर अवसर मिलेगा, और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस्ट चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस्ट का हिस्सा बन जाएं। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी। अरे बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। उस बातचीत में कुछ किस्से भी पता चले और कई दिलचस्प जानकारियां भी मुझे मिली। साथियों, आज का अवसर एक और वजह से बहुत खास है। ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। ड्यू की भी इन 100 वर्षों की यात्रा में कितने ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं। इसमें कितने प्रोफेसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड़ रहा है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स और स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस आयोजन के जरिए यहां नए और पुराने स्टूडेंट्स भी साथ मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ सदाबहार चर्चाएं भी होगी।
नॉर्थ कैंपस के लोगों के लिए कमला नगर, हडसन लाइन और मुखर्जी नगर से जुड़ी यादें, साउथ कैंपस वालों के लिए सत्य निकेतन के किस्से, आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, 2 डीयू वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। इस सब के बीच मैं मानता हूं डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवति, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है, और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब भारत सुख और समृद्धि के शिखर पर था। जब भारत के पास तक्षशिला जैसे संस्थान थे, तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था भारत की समृद्धि की वाहक थी। ये वो समय था जब दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर भारत का होता था। लेकिन गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड ने हमारे शिक्षा के मंदिरों को, इन एजुकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। और जब भारत का बौद्धिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गई। लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इस दौरान आजादी के भावनात्मक ज्वार को एक मूर्त रूप देने में भारत की यूनिवर्सिटीज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके जरिए एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधुनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। डीयू के सभी स्टूडेंट्स, वो चाहे किसी भी कोर्स में हो, वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे। अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है, आदर्शों को आधार देती है और भविष्य के विजन को विस्तार देती है। साथियों, कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत
दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है। यानी शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगी। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने, अगर पिछली शताब्दी के इतिहास की तरफ नजर करें तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। साथियों, शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में केवल
12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी। 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं इन सब के पीछे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है? ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैठे ही हुए मेरे युवाओं की शक्ति। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे। यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी, शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी। लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। 2014-15 की तुलना में आज 40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं। जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान हमने प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है? क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी आईसेट डील हुई। इस एक समझौते से हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक तमाम फील्ड्स में नए अवसर पैदा होने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है। और साथियों, ये आहट है कि भविष्य का भारत कैसा होने वाला है, आपके लिए
कैसे कैसे अवसर दस्तक दे रहे हैं। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 की क्रांति भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। कल तक एआई और एआर वीआर के जो किस्से हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब आज हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है। ये सभी सेक्टर्स भारत की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है, भारत ने ड्रोन से जुड़ी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन सभी निर्णयों से देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथियों, भारत की विकास यात्रा से हजारों युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स का कैसे लाभ हो रहा है, इसका एक और पक्ष है। आज दुनिया के लोग भारत को, भारत की पहचान को, भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे हैं। कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों के लिए परेशान था, लेकिन भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था। लिहाजा विश्व में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य हो, भारत की G20 प्रेसिडेंसी हो, ये सभी भारत के प्रति कौतूहल बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे जो ह्यूमैनिटीज के स्टैंडर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनेकों नए अवसर पैदा होने वाले हैं। योग जैसा हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे फेस्टिवल, हमारा लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री, हमारा हेरिटेज, हमारी विधाएं, हमारे व्यंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है। हर किसी के लिए नया आकर्षण पैदा हो रहा है। इसलिए उन भारतीय युवाओं की डिमांड भी बढ़ रही है जो विश्व को भारत के बारे में बता सके, हमारी चीजों को दुनिया तक पहुंचा सके। आज डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे इंडियन वैल्यूज दुनिया के लिए मानवीय पैमाना बन रही है। गवर्नमेंट फोरम से लेकर डिप्लोमेसी तक कई क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं। देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े क्षेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाएं बना दी है। आज देश के अलग अलग राज्यों में ट्राइबल म्यूजियम्स बन रहे हैं। पीएम म्यूजियम के जरिए आजाद भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं। और आपको ये जानकर के भी अच्छा लगेगा कि दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूजियम युगे युगीन भारत, ये भी बनने जा रहा है। कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े युवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोफेशन बनाने के इतने अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह आज दुनिया में
भारतीय टीचर्स की अलग पहचान बनी है। मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, उनमें से कई अपने किसी न किसी इंडियन टीचर से जुड़े किस्से बताते हैं और बड़े गौरव से बताते हैं। भारत की ये सॉफ्ट पावर इंडियन यूथ की सक्सेस स्टोरी बन सकती है। इस सब के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तैयार होना है, अपने माइंडसेट को तैयार करना है। हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोड मैप बनाना होगा, अपने लक्ष्यों को तय करना होगा। जब आप इस संस्थान के 125 वर्ष मनाए, तब आपकी गिनती वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में हो, इसके लिए अपने प्रयास बढ़ाएं। फ्यूचर मेकिंग इनोवेशंस आपके यहां हो, दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आपके यहां से निकले, इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाइएगा। कुछ बातें वैसी ही छोड़ दीजिएगा भाई। नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस की चाय, नूडल, साउथ कैंपस में चाणक्य आज के मोमोज, इनका टेस्ट न बदल जाए, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। साथियों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होता है। एक राष्ट्र के मन मस्तिष्क को तैयार करने की ये जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निभानी होती है। हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेम्परामेंट रखती हो। ये शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन से ही संभव होता है। मुझे विश्वास है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी